Hello everyone, welcome to Ticket Defense Family Group. I am Priyanka Singh and today we are going to know each and everything about the SSB process. Like what happens in SSB, who all can appear for the SSB, what happens, what all tests are there in the SSB, and what happens after that. Alright, so without any further delay, let's get into the video. So what SSB is actually, let's start from the basics, okay? बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो SSB interview is an interview which is conducted by the SSB like the Service Selection Board. SSB का full form होता है Service Selection Board. So Service Selection Board, it conducts an interview of 5 days and it recommends the candidates as an officers to the defense forces. Okay, just for Air Force, Army and Navy. All right. So in the defense forces, they have these personals, they have to survive in harsh conditions, they have to make hard decisions, and they have to command the officers and the soldiers, shouldering them. So this job, it requires certain set of skills. All right. और ये skills जो हैं, these skills are tested in the candidates if they have them in or not. So यहाँ पर SSB में they just test those skills and the candidates, if they have it in them, they will be recommended, they will be taken up, and if they don't, they will be sent back to their homes. All right. So the very first question that arises in my mind, in your mind, that who all can appear for the SSB and how can we appear for the SSB? So there are two ways of appearing in SSB. That is, one through an examination and two through some pre-entry. All right. So we'll get into these details. All right. So जैसे मैंने कहा कि there are two ways, examination के through or through pre-entry. So first examination that comes is in your 12th or after 12th, it is NDA. Okay, what happened? Okay, so first is NDA. NDA entry, where CDS entry. This is after your graduation or when you're graduating and you are in the last semester of your graduation, and both of these, they are conducted by the UPSC. And one more thing, both of these, they provides a way for like all three forces of the nation. Like you can appear for the CDS and NDA, and you can apply for you can fill your preference for the respective forces. All right. So उसके बाद आता है आपका AFCAT. This is also after the graduation or in the last semester of your graduation. This entry is for Air Force, and then comes your INET. This entry is for Navy. All right. So technicals, and फिर उसके बाद आती हैं आपकी प्री एंट्रीज. प्री एंट्रीज में आती है आपकी TGC entry, NCC entry. NCC लेकर then you can go for the SSB, you can appear for the SSB, and then your JAG entry for the law students. Okay, so these kind of entries are there for the people who don't want to appear for the examination, or the candidates who don't want to appear for the examination. All right. So after you clear all these entries, after you are shortlisted for the interview, the SSB interview, you will be called for the interview. You will receive your call letters, and then you will receive your respective SSB centers near to you or wherever they want. And after that, you will have to report there, and you will be collected by the personals over there, and then you go in for the SSB interview. Now the SSB interview, it is of, let's go into the next slide. What SSB is and what is the process of SSB. SSB is a 3-step process. Mainly the interview is a 2-stage process, and the third step, the last step, is the medicals that will see later. Okay, so the first step, that is screening, and the second stage, that is after the screening. All right. So पहले the SSB is of 5 days. First day होती है आपकी screening. ठीक है. अब यहाँ पे screening में they assess you, they just screen you कि can we, because stage 2 is a bit detailed stage. Okay, तो if screening में कम से कम 300-400 बच्चे आते हैं, ठीक है, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 बच्चे आते हैं, कितने भी बच्चे आ सकते हैं.
तो फिर आपको all of them cannot be promoted to the second stage because it is a bit detailed stage and it requires a lot of resources. So what they do is they screen you and they see that should we promote you or should we take you to the second stage or not. They see that, and whosoever clears the first stage, they are called screenings and they will be taken to the second stage assessment. All right, so फिर when somebody says that मैं पहले दिन ही out हो गया, तो that person is screened out, और the one who says कि मैं fifth day out हुआ, that person is the conference out, क्योंकि fifth day होती है आपकी conference. There we have. All right. फिर उसके बाद में after the fifth day we have the medicals and further processes. All right. So we will see today what happens in the screening, what happens in the stage 2, and what happens in the medical. All right. तो स्क्रीनिंग में बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि मैम 300-400 लोग थे और उन्होंने तो सुना भी नहीं, हमारी स्टोरी भी नहीं सुनी, हमने हमने बहुत मत समझ में नहीं आया, इतनी फिश मार्केट हो गई थी, एंड दिस एंड दैट, then how they assess us, they just call us to reject us and this and that. See, before preparing for the SSB, let me tell you something, that they are there to select you. All right, and they are not there to reject you, they are there to select you. Officers की कमी है फौज में, so they want to select you, but you should give them what they want. See, they have some standards, and doesn't matter how scarce the officers are in the defense forces, they won't lower down their standards because that job requires those standards. That's the requirement of the job. So you have to raise your standard to match theirs. They won't lower it down for you. So if you are getting rejected bar, just try to improve yourself, introspect and try to improve yourself and then appear for it. Okay, this is not a big deal. Okay, you just have to focus on yourself, you have to correct your wrongs or whatever, you just have to think what you're doing wrong, and then you will be able to just, it's a piece of cake. Okay, so first stage, let's get into the video. First stage is screening. All right, so screening में basically क्या होता है, they put you through some tests. Okay, and on the basis of your performance in those tests, they screen you in and they screen you out. Now what those tests are? All right, so first test is OIR. They test your intelligence through it. OIR क्या होता है? OIR is basically the officer's intelligence rating. ओके, सो यहाँ पर आपको आपका इंटेलिजेंस चेक किया जाता है कि आप मेंटली साउंड हो या नहीं. तो उसके लिए क्या होता है, दे हैव रीजनिंग टेस्ट्स. रीजनिंग में क्या क्या होता है, नॉन वर्बल होती है और वर्बल रीजनिंग होती है. ऑलराइट, सो यहाँ पर नॉन वर्बल होगी, वर्बल होगी, और इसके कितने क्वेश्चंस होंगे किसी को नहीं पता है, कितना टाइम दिया जाएगा किसी को नहीं पता है. ये ऑन द स्पॉट वहीं पर आपको बताया जाता है. उनकी बुकलेट्स होती हैं, वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, उसमें जितने क्वेश्चंस होते हैं आपको सॉल्व करने होते हैं. नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सो यू कैन गेट कंफर्टेबल विद द क्वेश्चंस एंड आपको उसी टाइम फ्रेम में करना होता है. ऑलराइट, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के टाइप्स होते हैं, वो पहले एक मॉक टेस्ट जैसा देते हैं आपको, वो आपसे सॉल्व कराते हैं, और फिर उसके बाद में द मेन टेस्ट इज थ्रोन इट टू यू. ऑलराइट, सो ये टेस्ट होता है. उसके बाद में आता है आपका PPDT. ऑलराइट, उसके बाद में आता है PPNDT. अब PPNDT क्या होता है? PPNDT इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट और डिस्क्रिप्शन टेस्ट. ऑलराइट, तो वहां पर क्या होता है, आपको एक पिक्चर दी जाती है. इजी पिक्चर हो सकती है, क्लियर पिक्चर हो सकती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम. सो दिस इज अ क्लियर पिक्चर जो कि मैंने अरेंज करी है. ठीक है, इट इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि ऐसा होता है. डोंट टेक इट एज अ पत्थर की लकीर. ओके, सो यहाँ पर एक पिक्चर है, वहाँ पर आपको एक बड़े से हॉल में एक पिक्चर दिखाई जाती है, आपको एक पेपर दिया जाता है, आपको 30 सेकेंड दिए जाते हैं कि आप उस पिक्चर को अच्छे से देखें, उसको एनालाइज करें, उसमें कितने लोग हैं, कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर बैठे हैं, उसका सराउंडिंग क्या है, हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड व्हाट दे आर डूइंग. एक्चुअली यू हैव टू एनालाइज एवरीथिंग एंड देन आपको 1 मिनट दिया जाता है, उसके बारे में लिखें जो भी है सोचा है. फिर उसके बाद में आपको 4 मिनट दिए जाते हैं कि आप एक स्टोरी बनाएं ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेप्शन, व्हाट यू हैव परसीव्ड.
from the picture you have to write it down into a story on that paper, and then जैसे ही आपका 4 मिनट ओवर होते हैं वैसे वो पेपर कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर आपको भेज दिया जाता है डिस्कशन के लिए। अब क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें डिस्कशन नहीं हो सकता है, इसीलिए आपके छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, 10 से 15 बच्चे इतना ग्रुप बना दिया जाता है, आपको सेपरेट रूम्स में भेज दिया जाता है और वहां पर होती है आपकी डिस्कशन। ऑलराइट, so first of all when you arrive in that room there will be a sitting arrangement, आप बैठ जाएंगे वहां पर जाके and then you will be asked to narrate your own story। तो आप अपनी स्टोरी एक एक करके नरेट करेंगे and then after that once the narration is over you will be asked to discuss the story, discuss whatever the story and come to a conclusion, come to a group story। आपको सबकी स्टोरी मिला के या नहीं मिला के डजेंट मैटर, आपको एक डिस्कस करके एक स्टोरी बनानी है, एक स्टोरी प्रेजेंट करनी है। ऑलराइट, तो आप फिर कोई भी ग्रुप में से whatever you whoever you want or whomever they want they'll ask them to narrate the group story। ग्रुप स्टोरी प्रेजेंट की जाती है, फिर उसके बाद में आपको भेज दिया जाता है वापस द रूम इन द हॉल। फिर उसके बाद में आफ्टर योर स्क्रीनिंग इज डन आपको खिलाया पिलाया जाता है, फिर उसके बाद में आपका रिजल्ट दिया जाता है। ठीक है, तो जो रिजल्ट्स में जो भी बच्चे whomsoever has performed better or according to their expectations they are passed on to the second level, that is second phase, that is your SSB का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डे। एंड बाकी जो लोग नहीं कर पाए उनको घर भेज दिया जाता है वापस। ऑलराइट, ठीक है, तो लेट्स जस्ट से कि अपन स्क्रीनिंग हो गए। ठीक है, गुड थिंग। तो फिर उसके बाद में सेकंड स्टेज, वी हैव सेकंड स्टेज। तो उसमें क्या क्या होता है वी विल सी नाउ। ऑलराइट, तो सेकंड स्टेज में डे 2 में क्या होता है, वी हैव डिफरेंट टेस्ट अगेन। सो नाउ दीज टेस्ट आर साइकोलॉजी टेस्ट। ठीक है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है आपका और वहाँ पर आपकी साइकोलॉजी टेस्ट की जाती है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका मेंटल एप्टीट्यूड क्या है, बेसिकली आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका साइकोलॉजी, आपकी थिंकिंग कैसी है, वो टेस्ट किया जाता है थ्रू वेरियस टेस्ट्स। ऑलराइट, तो व्हाट आर दोज टेस्ट, दे आर, पहले अपन पूरा देख लेते हैं कि व्हाट इज द फ्लो चार्ट, व्हाट आर ऑल टेस्ट्स एंड देन वन बाय वन वी विल गो इन द डिटेल्स ऑफ दीज पर्टिकुलर टेस्ट्स कि क्या होता है, कैसे होता है, everything will learn। So just थोड़ा सब्र रखें, just we will go through this flow chart first। तो एक टेस्ट होता है that is thematic appreciation test, then we have that, then we have SRT that is situation reaction test, then we have SD, this is SD। ठीक है, self description test। okay, फिर day 3 पे we have our GTOs and interview। GTO is group testing officer। okay, so यहाँ पर आपका ग्रुप एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है कि आप ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं, आपका ग्रुप बिहेवियर, आपका टीम स्पिरिट चेक की जाती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे GTO फर्स्ट, उसमें कौन से टेस्ट होते हैं, फर्स्ट इज GD दैट इज ग्रुप डिस्कशन, सेकंड इज GPE दैट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज एंड थर्ड इज PGT। फिर ये है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, देन इज योर GOR दैट इज ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस एंड देन इज योर HGT that is half group task and then comes your lecture। okay, so फिर उसके बाद ये टेस्ट क्या है we will discuss later, अभी in this video only। फिर उसके बाद आता है आपका GTO2 on the 4th day। GTO2 में जो भी आपके GTOs बचे हैं वो होंगे that is IO, CT and FGT। and one more thing, these sequences they are not fixed। all right, the SSB it can manipulate or shuffle these sequences in any manner they want। ऑलराइट, तो इट इज नॉट लाइक कि आज GTO थर्ड डे तो ये होना था, बाद में आपने ऐसे आके लड़ो कि मैडम आपने तो थर्ड डे लेक्चर बोला था, फोर्थ डे कैसे हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब जब उन्हें चाहिए वो तब करेंगे। ठीक है, और इंटरव्यू कैन हैपन ऑन एनी डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, सेकेंड डे, कभी भी हो सकता है। ऑलराइट, सो फिर उसके बाद आता है आपका फोर्थ डे। फोर्थ डे में आपका आएगा IO दैट इज इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, CD दैट इज कमांड टास्क एंड FGT दैट इज फाइनल ग्रुप टास्क। ऑलराइट, तो उसके बाद में डे 5 में आपका होगा कॉन्फ्रेंस एंड रिजल्ट्स, आपको रिजल्ट सुनाए जाएंगे। फिर उसके बाद में जो बच्चे रिकमेंड होंगे वो जाएंगे मेडिकल्स के लिए एंड जो बच्चे कॉन्फ्रेंस आउट होंगे दे विल गो बैक टू देयर होम्स। ऑलराइट, सो वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी टेस्ट दैट वी हैव सीन नाउ। फिर उसके बाद में विल सी। ओके,
थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट जो देखा था हमने, टैट, ओके। सो इट इज़ जस्ट लाइक द पीपीडीटी। जैसा पीपीडीटी में एक इमेज दिखाई जाती है, उसके लिए आपको फिर 4 मिनट दिए जाते हैं लिखने के लिए, वैसे यहाँ पे होता है। बस फर्क ये होता है कि वहाँ पे पीपीडीटी में एक पिक्चर दिखाई जाती है और उसके बाद में आपको एक ही स्टोरी लिखना है। यहाँ पे 12 स्लाइड दिखाई जाएंगी जिनके बारे में आपको 12 स्टोरीज लिखनी है। लास्ट स्लाइड जो होती है वो ब्लैंक होती है, आपको अपने मन से कोई भी स्टोरी लिखनी है वो आप लिख सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या होता है थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट में, you will be given 30 seconds to see what the picture is। पिक्चर को 30 सेकंड दिए जाएंगे, आपको जितना घूरना है घूर लो। उसके बाद में 4 मिनट दिए जाएंगे, आपको लिखनी होगी स्टोरी उन ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेप्शन ऑन दैट दोज पिक्चर्स। ऑलराइट, तो उसके बाद में 12 ऐसे स्लाइड्स होंगे, 12 पिक्चर्स, 12 स्टोरीज। ऑलराइट, फिर उसके बाद में आता है आपका दूसरा टेस्ट विच इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, दैट इज वैट। ऑलराइट, तो वैट में क्या होता है, आपको एक वर्ड दिया जाता है, आपको उसके ऊपर एक सेंसिबल मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है, और वो भी 10 सेकंड में। ऑलराइट, तो फिर इसीलिए बोला जाता है कि आपको वहां पर दे विल क्रिएट प्रेशर, टाइम प्रेशर दे विल क्रिएट, दे विल मेक यू नर्वस सो दैट यू रिवील योर ट्रू सेल्फ। ओके, अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप कहीं से रट के आओ और मैं वही के वही चेप दूंगा वैट और मैं रट के आता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस। ऑलराइट, अगर इतना टाइम प्रेशर होता है यू कैन नॉट गो बैक इन टू योर मेमोरी। अच्छा, एबिली जी का क्या वैट लिखा था मैंने, अब मैं वो याद करूँ और मैं उसको लिखूँ, नो यू कैन नॉट। सो यू जस्ट write what is in your, what comes in your mind the very first time। all right, so this is basically the most intense thing in the whole test series। okay, so that में आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं एक एक वर्ड के लिए। जैसे हीट है, ठीक है, it will flash on the screen and then you will be given 10 seconds and you have to write a whole sentence on that word। ऑलराइट, तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जनरल जनरल वर्ड्स होते हैं, कोई ज़्यादा बहुत टॉप वर्ड्स नहीं होते। तो यू हैव टू राइट डाउन अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑन दोज वर्ड्स। राइट, फिर उसके बाद में आता है आपका SRT, दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ओके, तो SRT इसमें आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको फिर उसके लिए यू विल बी आस्क्ड टू राइट अ रिस्पॉन्स फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। आपको एक बुकलेट दे दी जाएगी जिसमें 60 SRTs होंगे और आपको आधा घंटा दिया जाएगा कि इसको सॉल्व करो। सो अकॉर्डिंगली यू विल गेट 30 सेकेंड फॉर वन सिचुएशन। तो आपको उसके रिस्पॉन्सेज लिखने होंगे। एक सिचुएशन होगी जैसे फॉर इलस्ट्रेशन, just like when he wanted to study, this is an illustration, this is just say one of the SRTs, like just an example। okay, when he wanted to study, his roommate in the hostel constantly disturbed him, what he would do? So means this means कि you have to write a response, he would do what। तो यहाँ पर आपको लिखना है वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर यू वुड डू इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। आप जाओगे, उसको मारोगे, कूटोगे, बोलोगे चुपचाप रह इधर, मेरे को पढ़ना है और डोंट डिस्टर्ब मी, या फिर उसके साथ बात करोगे जाके कि भाई क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, और फिर यू विल सॉर्ट इट आउट इनटू नाइस इन पीसफुल मैनर। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट रिस्पॉन्स यू आर गिविंग टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिस्पॉन्सेज यू आर असेस्ड। ऑलराइट, तो साइकोलॉजी में बेसिकली आपकी साइकोलॉजी स्टडी की जाती है कि क्या आप in those situations how would you react and how would you handle those situations। तो कुछ easy होती हैं, कुछ tough होती हैं, कुछ intense होती हैं, so you have to be very wise and very careful while writing down the responses। alright, फिर उसके बाद में आता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब यहाँ पर आपको अपने बारे में लिखना है, इसीलिए कहा जाता है कि यू शुड नो योर सेल्फ बेटर बिफोर यू गो इन टू द SSB इंटरव्यू। तो यू शुड नो योर सेल्फ। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताएं। ठीक है, पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर पुट थ्रू, like what is the opinion of the following about you, your parents, your guardian, and your friends, your teachers, your superiors, and your self, what you think about yourself। so these 4 questions ये तो फिक्स होते हैं, ये फिफ्थ वाला थोड़ा वेरी कर सकता है कि क्या है। questions qualities a candidate would like to develop and or inculcate in themselves, or what you think, what you see yourself, how you see yourself in
coming 5 years, or these kind of questions are there. The fifth question might differ, but ये तो सेम ही होता है. Alright. फिर उसके बाद आपको 15 मिनट दिए जाते हैं पांचों क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए, एंड यू हैव टू राइट इट डाउन इन दैट बुकलेट ओनली. उसके बाद आता है आपका ग्रुप डिस्कशन. दिस इज द थर्ड डे का चीज. ठीक है, जो जीटीओ टास्क है वो यहाँ से शुरू हो गया. ठीक है, जीटीओ टास्क में क्या होगा, आपका पहला ग्रुप डिस्कशन होगा. ग्रुप डिस्कशन में आपको 20-20 मिनट के 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं, और आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा. 3 मतलब आपको टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, 2 या 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे. फिर आपको उसमें से चूज करना है. ठीक है, फिर आपको डिस्कस करना है. फिर आपको एक और जीडी के लिए 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, तो उसमें से भी आपको चूज करना है, एंड देन यू हैव टू डिस्कस दी टॉपिक. ऑलराइट, तो ऐसे 20-20 मिनट के 2 जीडीज होंगे. फिर उसके बाद में आपको यू विल बी गोइंग फर्दर फॉर द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको एक सिचुएशन, एक बोर्ड होता है ऐसा, उसमें एक सिचुएशन दी जाती है जिसमें बहुत सारी सिचुएशंस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड यू हैव टू स्टेप वाइज सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. ठीक है, तो आपको ऐसे एक पूरी एक सोल्यूशन देना पड़ता है. आपको लिखने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं. फिर आपको पूरा सोल्यूशन लिखना पड़ता है कि हाउ विल यू मैनेज दोज प्रॉब्लम्स. ठीक है, आप कैसे कैसे उसे सॉल्व करोगे. टाइम में वैरी. फिर उसके बाद में आपको वो जो सोल्यूशन आपने लिखा है आपको सबके साथ डिस्कस करना होता है, एंड देन यू हैव टू अराइव टू अ कंक्लूसिव सोल्यूशन. आपको सबका एक कंक्लूसिव सोल्यूशन पे, आपको एक कंक्लूजन पे अराइव होना होता है. फिर उसके बाद में वन ऑफ योर ग्रुपमेट, और इट माइट बी यू, यू हैव टू narrate, or you have to explain the conclusion, basically the solution of that particular problem to the GTO and your whole group, and then उसके बाद में आपको next GTO के लिए भेजा जाएगा. ओके, फिर उसके बाद में आता है आपका लेक्चरेट. लेक्चरेट जो है, यस, इसमें आपको 3 मिनट के लिए बोलना होता है ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक. यू विल बी गिवन 3 चॉइसेस. ठीक है, 3 चॉइसेस, 4 चॉइसेस, इट मे वैरी. तो आपके पास एक चिट्ठी दी जाएगी, उसमें 3 या 4 आपके टॉपिक्स होंगे, उसमें से आपको एक चूज करना है. ठीक है, और उसके बाद में आपको 2.5 मिनट दिया जाएगा सोचने के लिए. 3 मिनट दिए जाएंगे आपको सोचने के लिए कि आप सोचो उसके बारे में, उसको फ्रेम करो. फिर उसके बाद में यू विल बी गिवन अनदर 3 मिनट्स टू एक्सप्लेन इट और टू स्पीक अबाउट इट. ओके, फिर ये होता है. उसके बाद में वी हैव अनदर टास्क, दैट इज पीजीटी, दैट इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क. प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क इज बेसिकली आपको 4 ऑब्स्टेकल्स दिए जाते हैं. इट इज अ ग्रुप टास्क. तो यू यहाँ पर योर वर्क सेंस विद योर ग्रुप इज टेस्टेड इन दीज टास्क्स. ओके, तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपको 4 ऑब्स्टेकल्स दिए जाएंगे. आपको पूरे ग्रुप के साथ में चारों को क्रॉस करना है इन 40 मिनट्स. ऑलराइट, फिर इनका लेवल बढ़ता जाता है. फर्स्ट वन इज इजी, सेकंड वन थोड़ा सा मुश्किल होता है, थर्ड वन और मुश्किल होता है, फोर्थ वन मुश्किल ही होता है. ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका हाफ ग्रुप टास्क. अच्छा, तो कुछ लोग होते हैं जो कि पूरे ग्रुप के साथ में अच्छे से अपना बेस्ट नहीं परफॉर्म कर पाते, तो उनके लिए दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और इसीलिए ग्रुप को स्प्लिट कर दिया जाता है, और आपके ऑब्स्टिकल 4 से 2 कर दिए जाते हैं. आपका टाइम भी 40 मिनट से 20 मिनट कर दिया जाता है, और फिर आपको कहा जाता है कि ये वाला टास्क आप करिए. ठीक है, फिर इसमें मतलब हाफ ग्रुप टास्क में क्या होगा, आपका ग्रुप हाफ हो गया, आपके ऑब्स्टिकल हाफ हो गए, और आपका टाइम भी हाफ हो गया. नाउ यू हैव टू परफॉर्म. ओके, फिर उसके बाद में आता है आपका ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस. दिस इज माय पर्सनल फेवरेट. ओके, तो ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में एक इसको स्नेक रेस भी कहा जाता है. ठीक है, इसको स्नेक रेस भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें एक बड़ी सी आपको स्नेक जैसी कुछ चीज दी जाती है. मतलब इट्स नॉट अ स्नेक, लिटरल स्नेक, बट या इट्स अ रोल और समथिंग, इट वुड बी देयर. और आपके ग्रुप को कहा जाता है कि उसे पकड़िए, और उसको पकड़ते पकड़ते यू हैव टू क्रॉस दिस रेस विच इज फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स. ठीक है, इट इज अ रेस, मीन्स देयर विल बी अदर ग्रुप्स competing with you, and you have to you have to tackle all those obstacles, and you have to reach to the finish point first. Okay, so ये इसमें बहुत मजा आता है. लाइक दिस इज वन ऑफ द ऑब्स्टेकल. यहाँ पे इसको यू हैव टू मेक एन एज एंड यू हैव टू क्रॉस दिस ऑब्स्टेकल. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एज अ ग्रुप आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है, आपको एक दूसरे को बचाना होता है, एंड यू हैव टू डू, इट इज अ फन थिंग. ओके,
So you have to cross this obstacle, you have to reach first. It's a race, and then comes your next GTO, दैट इज इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल. यहाँ पर आपका अभी तक हमने देखा कि सारे ग्रुप टास्क पे, अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है इंडिविजुअल वर्क सेंस. ठीक है, आप अपने खुद के साथ ना आप कैसे परफॉर्म करते हो, व्हाट इज योर स्पोर्ट्समैन सीरीज विद स्पिरिट विद योर ओन सेल्फ. ठीक है, तो यहाँ पे दीज आर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स. तो एवरी ऑब्स्टेकल इज मार्क्ड विद द स्कोर. ठीक है, जो ज़्यादा टफ वंस होते हैं दे आर गिवन हायर स्कोर्स, और जो इजी वाले होते हैं उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक स्कोर दिया जाता है. ठीक है, आपको 3 मिनट दिए जाते हैं. आपको यू हैव टू complete as many IOs individual obstacles as you can. ठीक है, so these are some obstacles that you have to cross. इसीलिए कहा जाता है बिकॉज पता है इसके बाद में इंसान फैल जाता है, ये बिल्कुल ताकत नहीं बचती कि अब उठ भी सकते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर फिजिकल फिटनेस बिफोर यू गो फॉर द एसएसबी. यू हैव टू वर्क, you have to run, you have to do some pull-ups, push-ups to increase your stamina. You have to work on your stamina ताकि यहाँ पर जाके आप फैल ना जाओ, धरती में ना मिल जाओ. ठीक है, तो इसीलिए आप अगर एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज इंक्लूड सम एक्सरसाइजेस, प्लीज इंक्लूड रनिंग और स्विमिंग और डू एनीथिंग. ओके, जस्ट वर्क ऑन योर फिजिकल फिटनेस सो दैट यहाँ पर आगे भी परफॉर्म करने लायक बच्चों आप. ठीक है, फिर आता है आपका कमांड टास्क. तो जब आप एग्जॉस्ट हो चुके हो फिजिकली मेंटली सब तरीके से, तो आपको कमांड टास्क दिया जाता है कि यहाँ पर एज द नेम सजेस्ट यू कमांड, इट इज अ कमांड टास्क. यू हैव टू कमांड, यू विल बी कॉल्ड एंड यू विल बी आस्क्ड टू कॉल 2 more subordinates for yourself. ठीक है, आपको 2 बंदे और बुलाने हैं एंड यू विल बी मेड अ कमांडर. बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, एंड देन यू विल हैव टू कमांड दो सबॉर्डिनेट्स टू क्रॉस एन ऑब्स्टेकल. ठीक है, आपको एक ऑब्स्टेकल दे दिया जाएगा, आपको 2 सबॉर्डिनेट दे दिए जाएंगे एंड देन यू विल बी आस्क्ड टू कमांड देम एंड मेक देम टू क्रॉस द ऑब्स्टेकल. You yourself can also contribute to it, but it is basically a command task. Okay, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है आपका फाइनल ग्रुप टास्क. मीन्स कि फाइनल ग्रुप टास्क मतलब इसमें आपको एक ही ऑब्स्टेकल दिया जाता है पर आपके पूरे फाइनल ग्रुप के साथ में यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू क्रॉस इट. ऑलराइट, तो 10 ही मिनट होते हैं इसके लिए. फिर दिस इज द फाइनल जीटीओ टास्क. उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू. इंटरव्यू कभी भी हो सकता है, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, वेन एवर दे वांट. सो इंटरव्यू में आपको आपका PIQ फॉर्म भरवाया जाता है आपका स्क्रीनिंग के बाद में और स्क्रीनिंग से पहले. तो उसके बेसिस पे दे आस्क यू अबाउट योर ओन सेल्फ एंड सम थिंग्स जस्ट लाइक इंटरव्यूज. तो वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी असेस होती है. They check your PIQ and your achievements and everything. Okay, they can ask you whatever they want. All right, फिर उसके बाद आता है आपका कॉन्फ्रेंस. अब कॉन्फ्रेंस इज द लास्ट स्टेप. कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया जाएगा एंड देन यू विल बी आस्क्ड सम क्वेश्चन इफ दे हैव, अदरवाइज यू विल बी जस्ट सेंट बैक टू योर प्लेस, मींस द हॉल. ओके, फिर उसके बाद में कॉन्फ्रेंस के बाद रिजल्ट्स होते हैं. तो रिजल्ट्स में whosoever has cleared the second stage will be recommended for the defense forces for the further procedure for the medical board actually, or the medical examination, and the rest of the others they will be sent back to the homes. Alright, फिर उसके बाद में जो recommended candidates होते हैं वो जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए. मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उनका फुल बॉडी के चेकअप्स होते हैं. और फिर उसके बाद में whosoever clears the medical examination as a fit and fine personnel, they will be joining their respective academies after they clear the merit also. Okay, so merit भी होती है. If they are in the merit, they will be joining their respective academies, and yes, then you have to undergo some training, undergo the respective training, and then you will be commissioned as an officer. Okay, so if you have this is all for today. If you have any other doubt regarding the SSB and its procedures, you can comment down below and I will be very happy to answer all those questions. So for now, let's just finish this and we will meet you in the next video. All right, take care.